Question number 10. In triangle PQR, let's draw a triangle PQR. Right angled at Q. Okay, right angled at Q, PQR. PQ is 5 centimeter and PR, PR plus QR is given as 25 centimeter. Determine sin P, cos P, tan P. हमें क्या दिया है? पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर. सी, ये सब हमें कैलकुलेट करना है. साइन पी, कॉस पी, टैन पी. साइन पी, कॉस पी, टैन पी. सबसे पहले दिया क्या हुआ है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर is 25 centimeter. That means this hypotenuse and this perpendicular, if we are considering this angle, because we have to calculate p cos p sin p tan p. For this p, ये साइड हमारा perpendicular आएगा, this will be our base and this will be our hypotenuse. See, now हमें दिया क्या हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर is 25 centimeter. Now let's take this p, sorry, क्यू आर, this क्यू आर, इसको हम x मान के चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो पी आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? पी आर विल बी दिस एक्स, हम इस साइड ले जाएंगे 25 माइनस एक्स. सो दिस हाइपोटेन्यूज विल बी 25 माइनस एक्स और ये परपेंडिकुलर हमारा एक्स और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम फॉर दिस ट्राइंगल. सी, बाय PT for this triangle PQR, hypotenuse square h square is equal to base square plus this perpendicular square. Now hypotenuse कितना है हमारे पास? 25 minus x, 25 minus x whole square is equal to base square. base हमें पता है 5 centimeter. That means, sorry, 5 square plus perpendicular हमारा x है तो x square. See, I hope you have written it. 25 minus x whole square is equal to 5 square plus x square. Now this is an identity. A minus b whole square किसके बराबर होता है? a square plus b square minus 2ab. Now यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? 25 और b का काम x. Let's apply this identity. See, it's 25 minus x whole square, so it will be 25 square plus b square यानी x square minus 2 a हमारा 25 है, b हमारा x है, is equal to 5 square, that is 25, plus this x square will remain as it is. This 25 square is 625 plus x square minus 2 into 25 is 50 और अपना ये x is equal to 25 plus x square. सी, हम x square को इधर लेके आएंगे, वो minus x square होगा. That means this x square and this x square will go. Quadratic term गई. सी, हमारे पास क्या बचा? 625 minus 50 is equal to 25. 625 इधर ही रहने दो इसको, 25 को इस साइड लेके आते हैं, इज इक्वल टू 50x. दैट मीन्स 625 माइनस 25, दैट इज 600, इज इक्वल टू 50x. साइन p, cos p, tan p, we have to calculate this. 600 इक्वल टू 50x. इस 50 को हम इधर डिवाइड भी लेके आ सकते हैं, इज इक्वल टू x. 0 0 गया, 5 1 r, 5 12 r. दैट मीन्स x हमारा 12 है. सी, दिस x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 25 माइनस 12, दैट इज 13 सेंटीमीटर. सी, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया, परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया. नाउ लेट्स मूव टू these things. Sine of
P किसके बराबर होता है? Perpendicular by hypotenuse. For this P, what is perpendicular? It is this 12. 12 by hypotenuse. Hypotenuse कितना कैलकुलेट किया? 13. Same calculate cos P, tan P. I hope you can do it. Question number 11. See, it is statement based question. Tan A is always less than 1. State it's true or false. Tan A is always less than 1. Is it true or no? We have to justify this. True or false. See, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि हम एक एंगल लेते हैं A, this is B and this is C. Now let's calculate tan for this angle, this A. Tan of A, perpendicular ये होगा opposite side, this perpendicular, and this is base and this is hypotenuse. See, tan of A किसके बराबर होगा? Perpendicular by base. Now दो चीजों का रेशियो, दो लेंथ्स का रेशियो या तो लेस देन 0 होगा, सॉरी 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा. तीन चीजें हमारे पास, या तो 0 होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा. सी, वो केस तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तब. सबसे पहला केस लेस देन 1 कब होगा? सी, दो लेंथ्स का रेशियो लेस देन 1 कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा इस न्यूमरेटर के, तभी ये रेशियो लेस देन 1 होगा. और ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ये न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, जब ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, देन दिस रेशियो, दिस tan, वैल्यू फॉर दिस tan a विल बी ग्रेटर देन 1. और ये इक्वल कब होगा? जब परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होगा, यानी जब दो लेंथ्स का रेशियो इक्वल होगा. अभी मैं परपेंडिकुलर बेस के बारे में बात नहीं करता हूं. जब दो लेंथ्स बराबर होंगी, वेदर इट्स a डिवाइडेड बाय b, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी ये रेशियो इक्वल टू 1 होगा. जब ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा. और जब ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा तब ये रेशियो लेस देन 1 होगा. सी, लेट्स टॉक ऑफ दिस नाउ. हमारी एग्जांपल क्या है? tan a is always less than 1. दैट मीन्स ये बोलना क्या चाहता है कि दिस बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, तभी तो ये रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा. बट दिस इज नॉट द केस. बेस कैन बी, सी, हम ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हैं. दिस इज राइट एंगल हियर और ये हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन होगा. सी, दिस बेस इज मच ग्रेटर देन दिस परपेंडिकुलर. और हम ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हैं. ये राइट एंगल यहाँ पे, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. इन दिस केस परपेंडिकुलर इज मच लार्जर देन बेस. जब हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये होगा, दैट मीन्स दिस थिंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू. दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, क्योंकि परपेंडिकुलर भी बेस से बड़ा हो सकता है. Now sec A, secant of, this is second part. Second part for this question number 11 is 12 by 5 for some value of A. See, सबसे पहले सेम, लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, जिसमें हमने ये एंगल ऑफ कंसिडरेशन लिया A, this is B and this is C. Now this sec, this is inverse of cos, because you know cos A is just inverse of sec A, or sec A is just inverse of cos A. Now let's calculate cos for this. Cos of A किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो sec of A किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस. See, now this sec of A is 12 by 5. Sec of A is 12 by 5. This ratio, because this numerator
is greater than this denominator, तो ये ratio greater than 1 होगा. This ratio will be greater than 1 because numerator is greater than denominator. Now look at this sec a. ये किसके और किसके बीच में रेशियो है? हाइपोटेन्यूज और बेस में. As you know, this hypotenuse is the longest side in triangle. That means ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज. ये बेस इससे छोटा ही होगा. दैट मीन्स ये सेक की वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी. दैट मीन्स दिस इज ट्रू. This 12/5 sec a can be 12/5. It can be greater than 1 because sec a किसका रेशियो होता है? हाइपोटेन्यूज और बेस का. This hypotenuse is the longest side in any triangle, any right angle triangle. That means this sec a will be greater than 1. This is true. Third part. Cos of A is abbreviation for cosecant of angle A. No. Cos of A is abbreviation for cosecant A, which is totally false. Why? Because this cosecant, it is the, इसका short form क्या होता है? Cosec. This cosecant A means cosec A, and this cos A, it is cosine A. ये cos A किसका एब्रीविएशन है? कोसाइन का, नॉट फॉर cosecant. This is false. Third part false. Fourth part. Cot A is product of cot and A. No. Cot A is product of cot and A. See, ये क्या बोलना चाहता है? See, we know that this cot, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, this cot, it's just a function. और this A, this can be anything, theta here. ये theta जो होता है, ये इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट डालते हैं. आर्ग्यूमेंट मीन्स मैंने बोला था कि this cot is a function और इसके अंदर हम एक इनपुट डालते हैं. This function you can consider any machine. और इस मशीन के हमने अंदर इनपुट डाला और इनपुट क्या होता है हमारा? एंगल, एनी एंगल. और ये हमें रिजल्ट में क्या देता है? रिजल्ट होता है हमारा कुछ आंसर, एनी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, एनीथिंग. सो दिस, ये बोलना क्या चाहता है? कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. इज इट लाइक दिस? कॉट मल्टीप्लाई बाय ए? दिस इज रॉन्ग. Because this A is just an argument for this cot. It's an input, not multiplication. We cannot write like this. Cot multiplied by A. It's just cot of A. That means we have substituted this A and calculated cot. So this part is false. Sin theta is 4/3. For some theta. See, again let's draw a right angle triangle. ये क्या बोलना चाहता है? Sin of theta is 4/3. See, let's look at this ratio first. Numerator बड़ा है, denominator छोटा है. That means this ratio should be greater than 1. इसका बोलने का मतलब ये है. Let's take this as theta, this as B, and this as A, and ये angle हमारा theta है. Let's calculate sin for this theta. Sin theta. साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सी, अभी अभी मैंने बोला ये हाइपोटेन्यूज जो होता है ये ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है. दैट मींस दिस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. दैट मींस ये डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा इस न्यूमरेटर से बड़ा होगा. दैट मींस दिस रेशियो will always be less than 1 or equal to 1. तब भी हो सकता है पॉसिबल जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा. वो कब होगा? वो आई होप मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था. जब हम sin 90 कैलकुलेट करते हैं तब 1 आता है, तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर होते हैं. सी, दिस अदर देन 90 और एनी अदर वैल्यूज 180 समथिंग, this perpendicular by hypotenuse is always less than 1. This is not true. It cannot be 4/3 because this hypotenuse is always greater than perpendicular other than 90.
I hope it's clear. This is false. This part, for this part it is false because sin theta is, इसकी range कितनी होती है? -1 से theta, sorry, sin theta always lies between -1, it's equal or like this.